Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Sara Ahmed. The lecture on the course sta408 Design and Analysis of Experiment is going to deliver on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 4 is starting over here. As you have studied about randomized complete block design in previous lecture, and you have learned in that the experimental material is divided into groups or blocks in RCBD, and treatments are assigned at random to the experimental units within each block. RCBD की डिटेल आप previous lecture में study कर चुके हैं. I am assuming that you have a knowledge about randomized complete block design, and now I will move towards a topic when you have to do a replication within block. What does it mean? It means that you are repeating the experiment again, and then each cell would contain n observations. Suppose you are doing 3 replications in block 1. For example, आपने first time experiment run किया, तो maybe treatments in blocks ऐसे randomly assign हों A, B, C, D. जब आप second time उसी experiment को again perform करें, तो maybe आपके पास ट्रीटमेंट्स इस तरह से आ जाएं A, C, B, D. थर्ड रेप्लिकेशन करने से मे बी आपके ट्रीटमेंट्स इस तरह से अलॉट हों A, C, D, B. तो ये आपकी एक ब्लॉक में रेप्लिकेशन है, यानी ये आपका ब्लॉक 1 है और ये आपकी रेप्लिकेशन 1 है, रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन 3. ये आपका एक कंप्लीट ब्लॉक जिसमें हमने 3 टाइम्स रेप्लिकेशन की है. अब आप देखें कि ये आपका जो फर्स्ट सेल है, ईच सेल में n ऑब्जर्वेशंस हैं. n नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को शो कर रहा है और आपकी नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हैं यहाँ पर 3. तो ईच सेल कंटेनिंग n ऑब्जर्वेशंस. अगर हमने इसको स्टैटिस्टिकल मॉडल में फॉर्म करना हो तो किस तरह से होगा? YIJL is equal to mu plus BI plus tau J plus B tau IJ plus EIJL, where I assumes values 1, 2, up to R. It shows for blocks, or you can say for rows. अगर आपके blocks जो हैं वो row wise show हो रहे हैं तो J assumes values 1, 2, 3 up to so on K. It shows number of treatments, L assumes values 1, 2, 3, 4 up to so on N, number of replications. रेप्लिकेशन परफॉर्म करने से मॉडल में इंट्रैक्शन टर्म इंट्रोड्यूस होगी, इंट्रैक्शन बिटवीन ith ब्लॉक एंड jth ट्रीटमेंट. हम इस टॉपिक की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. यू जस्ट हैव टू पिक द आइडिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स another topic, that is missing observations in randomized complete block design. Sometimes it so happens that some experimental units or observations are missing.
For example, plants may be uprooted or destroyed, records may be lost, flasks may break, animals may die, or human beings may not cooperate. These omissions, being beyond the control of the experimenter, affects the balance of the design. If due to any issue अगर observations miss हों, then the simple method suggested by Yates is to estimate the value of the missing observation so that a complete set of data is obtained for carrying out the usual analysis of variance. Suppose in general we have R blocks and K treatments, and the observation for block 1 and treatment 1 in RCBD is missing. I am putting X in place of missing observation. Baki observations in a usual manner, first block, second treatment, up to so on, first block, kth treatment, second block, first treatment, second block, second treatment, up to so on to K. Finally, YR1, YR2, up to so on YRK. सब ऑब्जर्वेशंस यूजुअल मैनर में उसी तरह से हैं जो आपकी ये फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट ट्रीटमेंट ये मिसिंग है. जब हम ब्लॉक टोटल करेंगे तो आपके पास बाकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं आप उसको उसी तरह से सम कर लेंगे और प्लस कर लेंगे हम साथ जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है. देन सेकेंड ब्लॉक का सम उसी तरह आ जाएगा अप टू सो ऑन आर ब्लॉक्स. और जब आप ट्रीटमेंट को ऐड करेंगे तो फर्स्ट में क्योंकि मिसिंग ऑब्जर्वेशन है T.2 एंड अप टू सो ऑन K ट्रीटमेंट्स का टोटल आ जाएगा. एंड जब हम इनका ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी आपकी मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक एज. येट्स ने जो मेथड सजेस्ट किया है कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन को एस्टिमेट कर लें, डाटा कंप्लीट हो जाएगा, देन यूजुअल जो टेस्टिंग प्रोसीजर है आरसीबीडी के लिए वो रन कर लें. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एस्टिमेट दैट मिसिंग ऑब्जर्वेशन और द वैल्यू ऑफ दैट मिसिंग ऑब्जर्वेशन. इट कैन बी डन बाय मिनिमाइजिंग द एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी डिक्रीज हो जाएगी बाय द नंबर ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस कंप्यूटेड. To get the error sum of squares, we have to perform the analysis of variance. For that purpose, source of variation RCBD में between treatments, between blocks, within error और finally total. अब हम इनका sum of squares अगर लिखें T.1 plus X square, ये बेसिकली जो आरसीबीडी का बेसिक सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालने का फॉर्मूला है उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो आपकी मिसिंग ऑब्जर्वेशन जहां जहां इन्वॉल्व है उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं. प्लस T.2 स्क्वेयर. वैसे तो हम इसको समेशन की फॉर्म में एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, अब मिसिंग ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें इसको सेपरेट शो करना पड़ रहा है. माइनस T.dot प्राइम प्लस X स्क्वायर और आर के. ये आपका बेसिकली करेक्शन फैक्टर होता है. फॉर ब्लॉक्स
माइनस कर देंगे हम करेक्शन फैक्टर को। एरर जो है वो बाय सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब ये कि टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आई जे वाई आई जे स्क्वायर प्लस मिसिंग ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर अब सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर एरर कैसे आएगा? टोटल में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा SSE दैट वुड बी इक्वल टू दिस टर्म। इसको मिनिमाइज करने के लिए वी डिफरेंशिएट दी सम ऑफ स्क्वायर्स एरर विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेट इट टू 0। जब हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स विद रिस्पेक्ट टू x इज x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा तो 2x और आगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस x ओवर के आर के लिख लें या के आर लिख लें, एक ही बात है, माइनस 2 t.1 प्राइम x ओवर आर माइनस 2 b1 डॉट प्राइम x ओवर k। मैं इसको इक्वेशन 1 कह रही हूँ। ये मैंने कैसे फाइंड किया कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे इस टर्म में x इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, इसमें भी और इसमें भी, इन सब टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया और जिनमें x इन्वॉल्व नहीं था उनको सेपरेट कर लिया। अब देखें जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व नहीं है उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने से वैनिश हो जाएगा और यू कैन से कि 0 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट टू 0 करेंगे तो 2x प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें से पूरी टर्म्स में से 2x कॉमन ले लूंगी, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा और x आपके पास यहाँ पे रह जाएगा x प्लस टी डॉट डॉट प्राइम ओवर के आर। ये टर्म्स मैंने सेपरेट कर दी हैं। इज इक्वल टू 0। x वाली टर्म्स को एक साइड पे करके x कॉमन ले लेते हैं। माइनस t.1 प्राइम ओवर r माइनस b1 डॉट प्राइम ओवर k इज इक्वल टू 0। जब ये टर्म आपकी इस साइड पर चली जाएगी तो यहाँ पे जो साइंस प्लस माइनस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। फाइनली के आर माइनस 1 माइनस k माइनस r over kr is equals to r b1 dot prime
plus k t dot 1 prime minus t dot dot prime over k r। फाइनली यहाँ पर ये टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और वहां पर इसको ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। x इज इक्वल टू आर बी 1 डॉट प्राइम प्लस के टी डॉट 1 प्राइम माइनस टी डॉट डॉट प्राइम ओवर, इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगी। जब ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो आप ये देखें कि ये जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज और ये वाला न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। The formula in general may be written as x is equal to rb plus kt minus g over k minus 1 into r minus 1, where r shows number of replicates, k number of treatments, b sum of remaining values in the blocks with the missing observations, यानी जिस ब्लॉक में ऑब्जर्वेशन मिस है उसकी बाकी ऑब्जर्वेशंस को आपने सम कर लेना है, same as sum of the remaining values of the treatment with missing observation. And finally G shows grand total of all observed values. अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। एग्जाम्पल इज the following data obtained from a randomized complete block design with 3 treatments A, B, and C, and 3 blocks contain 1 missing observation represented by X. This is your data, and the block 3 treatment C observation is missing, and I have put the X there. Estimate the missing observation and prepare a table for analysis of variance. We use the formula x is equal to rb plus k t minus g divided by k minus 1 and r minus 1. अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे ताकि डाटा कंप्लीट हो जाए और फिर आप यूजुअल मैनर में अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जस्ट डिफरेंस कहाँ आएगा? एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। जितनी ऑब्जर्वेशंस मिस थी, सपोज इस डाटा में एक मिस है तो आपको एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से 1 मोर माइनस करना पड़ेगा। अब ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो 3 है, तो R इज इक्वल टू 3, ट्रीटमेंट्स ABC वो भी 3 हैं, और जहां पर हमारी मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उस ब्लॉक का रिमेनिंग सम 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24। ये कैसे आया? देखिए यहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन मिस है तो इस ब्लॉक की जो रिमेनिंग है वो 8 और 16 है, आपने इनको सम करना है। इसी तरह ट्रीटमेंट सी में ये वाला मिस है तो आपने इन दोनों को सम करना है। t इज इक्वल टू 15 प्लस 14 29, ग्रैंड टोटल कि आप तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम कर लें 87। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें 3 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 29 माइनस 87 divided by 3 minus 1, 3 minus 1 is equal to 18। आपकी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उसकी वैल्यू है x is equal to 18। यहाँ पर आपकी ब्लॉक 3 में ट्रीटमेंट C की वैल्यू मिस थी, अब वो 18 है। येट्स टेक्निक के अकॉर्डिंग अब आप जब अपना डेटा कंप्लीट हासिल कर लें, इसके बाद यूजुअल मैनर में आप रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन की टेस्टिंग करेंगे और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए फर्स्ट स्टेप हम अपना हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे।
h naught mu dot 1 is equals to mu dot 2 is equals to mu dot 3. आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं तो मीन्स ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स इक्वल हैं. h1 not all treatment means are equal. नेक्स्ट हम बनाएंगे h नॉट प्राइम जो ब्लॉक्स को शो करेगा. 1 डॉट इज इक्वल्स टू 2 डॉट. 3 ही ब्लॉक हैं इसलिए हम इसको 3 डॉट तक लेके जाएंगे. इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल. डॉट 1 इट मीन्स आई जे ट्रीटमेंट्स को शो कर रहा है इसलिए वहां पर 1 2 और 3 है. और आई ब्लॉक्स को शो कर रहा है. यहाँ पर आई की प्लेसमेंट पे 1 2 3 है और ट्रीटमेंट्स की प्लेसमेंट पे यानी जे पे मैंने डॉट लगा दिया. सेकेंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अल्फा ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.05. थर्ड पे आ जाएगा आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक. अब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट मीन्स को भी टेस्ट कर रहे हैं और ब्लॉक मीन्स को भी टेस्ट कर रहे हैं. F1 अब मैंने फर्स्ट जो है वो लिखा है ट्रीटमेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उसका टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन कर देती हूँ. मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स ओवर मीन स्क्वायर फॉर एरर. F2 shows for blocks SB square mean square for blocks over mean square error. T this is for treatments. And SE square is mean square error. Same as SE square तो आपका mean square error है, लेकिन SB square जो है वो mean square for blocks है जो कि आपकी रोज में है. फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन. रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, उसे रिकॉल कर लेते हैं. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स TSS इज इक्वल टू समेशन I समेशन J YIJ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर. और करेक्शन फैक्टर जो है वो आपका T डॉट डॉट स्क्वायर ओवर n है. और n आपका R के 9 होगा. जब आप सारी ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करके सम करेंगे, करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 158. करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ. 105 square over 9 that is 1225. ये किस तरह से परफॉर्म किया गया ये आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है कि इन ऑब्जर्वेशंस को किस तरह से सम करना है. सो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बता दिया. नाउ यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स. उसका फॉर्मूला है समेशन J T डॉट J स्क्वायर ओवर R माइनस करेक्शन फैक्टर. और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 126. ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स इसको मैंने BSS लिख दिया. समेशन I B
I dot square over k minus correction factor. Block sum of squares is equal to 24.7. Error sum of squares, total sum of squares minus treatment sum of squares minus block sum of squares. तो error sum of squares आएगा 7.3. अब हम इन वैल्यूज को ANOVA टेबल में पुट कर देंगे. सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट्स हो सकती है इसमें, बिटवीन ब्लॉक्स विद इन एरर. यहाँ पे आ जाएगा टोटल ऑफ ऑल. अब देखें आपके पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, तो आपकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है न्यू 1 वो क्या होगी. ट्रीटमेंट्स कितने हैं आपके पास, k-1, ये आपके पास आ जाएगा 3-1, 2 आ जाएगी. ब्लॉक्स भी आपके पास 3 हैं, तो आपकी सेकेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ब्लॉक्स 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगी. न्यू 3 ये आपके पास होता है r-1 इंटू k-1. अब आपको क्या करना है कि जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड की है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 1. इट मीन्स कि आप इसमें से -1 करेंगे. न्यू 3 आपके पास आ जाएगी 2 इंटू 2 4 -1 3. इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को टोटल करें 2 + 2 4 + 3 7. सम ऑफ स्क्वायर्स हमने फाइंड किए हैं, उनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ. ट्रीटमेंट के लिए आया था 126, ब्लॉक्स के लिए 24.7, एरर के लिए था आपके पास 7.3 एंड टोटल SS was 158. अब आपको यहाँ पर ST² चाहिए. वो कैसे आएगा, 126 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 63 SB² BSS ओवर न्यू 2 यानी कि 24.7 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 12.35. यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज के लिए. 7.3 इसको डिवाइड करेंगे 3 पर तो मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा SE² दैट इज 2.43. अब आपको F1 चाहिए, ST² ओवर SE². ST² है आपके पास 63 और SE² है आपके पास 2.43. F1 आ जाएगा आपके पास 25.9. F2 SB² ओवर SE² 12.35 divided by 2.43, you will get a result 5.08. Fifth step है critical region. Reject null hypothesis if F1 जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट्स है, अगर वो एक्सीड कर जाए इस क्राइटेरिया से, अल्फा 0.05 है, न्यू 1 2 है और न्यू 3 3 है. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट्स का हाइपोथेसिस H0 रिजेक्ट होगा, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए
तो आपका ब्लॉक्स का हाइपोथेसिस H नॉट प्राइम रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखें आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू F1 है वो 25.9 है और जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आएगी 0.05 F के टेबल में 2-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखने से वो है 9.55 और ये इससे ग्रेटर है। सो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को और आपकी ब्लॉक्स के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो सेकंड आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है 5.08 वो लेस है 9.55 से। सो डू नॉट रिजेक्ट H नॉट प्राइम। फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि as our calculated value F1 falls in critical region, so all the treatment means are not equal, but the F2 second calculated value does not lie in rejection region. We conclude that all the block means are equal. Efficiency of randomized complete block design relative to a completely randomized design. For experimental design, efficiency relates to the ability of a design to achieve the objective with minimal expenditure of resource such as time and money. Its relative efficiency is usually expressed in terms of a ratio of error variances. Relative efficiency कैसे कैलकुलेट की जाती है? Relative efficiency of randomized complete block design to completely randomized design. न्यूमरेटर में आप रखेंगे estimated mean square error for completely randomized design. डिनोमिनेटर में मीन स्क्वायर एरर फॉर दी रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ये बेसिकली आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। जो आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया होता है वहां से आप r-1 वैल्यू पिक करें और दिस SB स्क्वायर शोज मीन स्क्वायर्स फॉर ब्लॉक for blocks. This is the mean squares for error and this is again the mean squares for error. R की वैल्यू भी आपको वहां से मिल जाएगी, K-1 की भी, R K-1 की भी, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉलम में शो हो रही होती है। और जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं और उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीन स्क्वायर्स आ जाते हैं, वो आप यहाँ पुट करेंगे। ये किस तरह से फाइंड की जाती है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। Given the following analysis of variance for randomized complete block design, this is your table. Source of variation between blocks, between treatments within error. यहाँ पे आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हैं जो आपने रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन परफॉर्म करते हुए ये सारी कैलकुलेशंस हासिल की हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर्स।
अब देखें आपके पास जो ब्लॉक्स है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 9 और सम ऑफ स्क्वायर्स है 0.4074। जब आपने 0.4074 को 9 पे डिवाइड किया तो आपके पास मीन स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स आ गया 0.0453। सेम एज जब आप ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3995 आपका मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स आ जाएगा। एंड फाइनली जब आप 0.6247 को डिवाइड करेंगे 27 पे तो आपके पास मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा, दैट इज 0.0231। अब यहां से आपको वैल्यूज लेनी है और रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इस एग्जाम्पल में आप एस्टिमेट करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ दिस डिजाइन रिलेटिव टू कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब देखिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास फर्स्ट शो हो रही है वो किसके लिए है, आपके पास ब्लॉक्स के लिए है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम RCBD में आपने देखा होगा R-1 है ब्लॉक्स के लिए, दैट इज इक्वल टू 9। K-1 3 है और 39 शो कर रहा है RK-1 को। जब आपने इन सबको RK-1 39 में से 9 और 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 27 आ गई। ये आपके पास मीन स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स है, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट्स एंड दिस इज मीन स्क्वायर फॉर एरर। अब हम रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट करें 9 यानी R-1 इज इक्वल टू 9 है, 0.0453 यह आपका SB स्क्वायर है प्लस 10 R को शो कर रहा है यानी R-1 9 है तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 3K-1 और ये आपका मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 39 यानी RK-1 0.0231। Relative efficiency is 1.1007 divided by 0.9009 is equal to 1.22, that is 122%. This indicates that the randomized complete block design is 122% as efficient as the completely randomized design. Hope you will understand how can we find the relative efficiency of randomized complete block design to a completely randomized design. For more understanding or practice, you have to solve these questions. Question number 1 is determine the missing observation and compute the analysis of variance. This is the given table for randomized complete block design. You can see that there are 3 blocks denoted as 1, 2, 3 and there are 5 treatments A, B, C, D and E. The observation in the second block A treatment is missed, denoted by Y2A. 2 shows that block number 2, second block A treatment A. यूजुअली ऑब्जर्वेशंस को हम y से डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में y2a से शो किया गया है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने स्टडी की थी उसमें मैंने x पुट कर दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इसको यूजुअल मैनर में उसी तरह येट्स मेथड अप्लाई करना है और आप y2a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आप अपना कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के लिए। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, मैं आपको जस्ट हिंट्स दूंगी। फर्स्ट स्टेप आप उसी तरह से हाइपोथेसिस डिफाइन कर लें, H0 म्यू डॉट A इज इक्वल टू म्यू डॉट B। 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो आपको वहां तक इसे लिखना है D एंड E।
All the treatment means are equal, formulated in H0. H1 है not all treatment means are equal. H0 prime 3 blocks हैं 1 dot 2 3. H1 prime would be like this, not all block means are equal. Second step, level of significance. अल्फा 0.05 ले लें. थर्ड स्टेप पे आपको अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखना है. F1 और F2 आप यहाँ पे डिफाइन कर लें. F1 आप ट्रीटमेंट्स के लिए लिख लेंगे और F2 ब्लॉक्स के लिए. टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन करने के बाद फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन. फॉर्मूला यूज करते हुए आप y2a जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें. देन आप अपना एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड रिमेंबर, जब आप एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करेंगे k-1 इंटू r-1, तो आपकी एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, आपको एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से 1 डिक्रीज करना है. सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस. फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको कुछ आंसर्स बता देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करें तो अपने आंसर्स को इससे मैच कर लें. सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यूज ये हैं. ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, एरर, टोटल. ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स 17.6 आएगा. ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स वुड बी 5.2. एरर सम ऑफ स्क्वायर्स 0.8. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स 23.6. आपने कंप्लीट अनोवा बनाना है और आंसर्स मैच करने के लिए ये मैंने आपको हिंट्स दिए. फिफ्थ स्टेप, क्रिटिकल रीजन एंड फाइनली कंक्लूजन. ये वो केस था जब आपके डाटा में मिसिंग ऑब्जर्वेशन है. इस लेक्चर में हमने एक और टॉपिक स्टडी किया था, that was efficiency of randomized complete block design relative to completely randomized design. उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ. Given the following analysis of variance for randomized complete block design, fill in the mean squares, estimate the efficiency of this design relative to completely randomized design. इस क्वेश्चन में आपके लिए सोर्स ऑफ वेरिएशन डिफाइन कर दिए गए हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज भी हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स भी गिवन है, आपको मीन स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं. देन आप रिलेटिव एफिशिएंसी निकालेंगे आर से बड़ी टू CRD. मीन स्क्वायर कैसे फाइंड किए जाते हैं? ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर्स ST स्क्वायर, मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स 134.45 divided by its degrees of freedom. The answer is 44.82. SB square, mean square for blocks. Sum of square for blocks है 21.46 divided by its degrees of freedom 4 and you will get a result 5.36. Mean square error 26.26 divided by its degrees of freedom 2.19 आएगा. After the completion of this table,
you have to find efficiency of RCBD relative to CRD. फॉर्मूला प्रीवियसली हम देख चुके हैं, R-1 mean square for blocks plus R into K-1 mean square error. ये आपके पास estimated mean square error for CRD है. अब आप यहाँ पर लिखेंगे mean square error for RCBD. RK-1 SE square. वैल्यूज पुट करें. 5 minus 1 5.36 plus 5 into 4 minus 1 2.19 mean square error है. 5 into 4 minus 1 2.19. Finally, answer is 1.30 or 130%. This indicates that RCBD is 130% as efficient as the completely randomized design or CRD. Thank you so much.